Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is my lecture number second, and chapter 4, and chapter name is Why Do We Fall Ill? It is ninth biology by Arfat Mujib. Dear student, now in this lecture number second, we will study now. Today's topic is typhus of diseases के typhus है यहाँ में आज. अब मेरा आज लेक्चर इसी पे है, टाइफस ऑफ डिजीजेस पे. तो देयर आर मेजरली 4 टाइप्स ऑफ डिजीजेस. 4 टाइप्स ऑफ डिजीजेस है. These 4 types of diseases are, number first is the acute diseases, और दूसरा जो है नंबर सेकंड जो है that is the chronic diseases, and number third is the congenital diseases. फोर्थ वन इज एक्वायर्ड डिजीजेस. तो ये 4 डिजीजेस हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. ऑल द 4 डिजीजेस, 4 टाइप्स ऑफ डिजीजेस we shall to discuss one by one. First of all, what do you mean by the acute disease? एक्यूट डिजीज क्या होती है? तो एक्यूट डिजीज ऐसी डिजीज होती है, ऐसी ये बीमारी होते हैं जो विच लास्ट्स फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, and the patient and the we can say person is quickly affected by this type of disease. ये वो डिजीज है जो जल्दी लग सकती है, जो जल्दी किसी पर्सन को अफेक्ट करता है, और जो अफेक्ट करता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द एक्यूट टाइप ऑफ डिजीज. इट इज कॉज इज sudden cause, and effect is very quick, and it is duration is for short. Duration is for short life period, time period. इसका short duration time period होता है, वो कहलाता है हमें acute disease. तो acute disease वही मैंने बोर्ड पे भी लिखी है इसकी definition. The diseases which last for short period of time. ये disease हमें रहती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इसका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा लाइफ के साथ एसोसिएट नहीं रहता है. या मैंने अभी कहा कि ये डिजीज जल्दी लगती है, जल्दी इफेक्ट करता है बॉडी पे पर्सन को, और ये ज़्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक रहते हैं. एंड कम ऑन सडन, अचानक आ जाती है, पता नहीं चलता. इसका कॉज जो होता है वो अचानक अफेक्ट होता है, सडन टू कॉज, एंड अफेक्ट द बॉडी क्विकली, और बॉडी भी क्विकली अफेक्ट होता है इस एक्यूट डिजीजेस. सम एग्जांपल्स ऑफ एक्यूट डिजीज आर वी कैन से द वूपिंग कफ, वी कैन से इन्फ्लुएंजा, फ्लू, we can say the disease which can be mentioned in this type of acute disease, or the common cold, that is a cough, sneezing, fever. These are the diseases which we can say that those are the acute diseases which come suddenly and have a short duration of impact and affect the person for short period of time. This is known as acute type of disease. ये मैंने कुछ examples भी दिए जो acute type of. अभी मैंने कहा कि flu है, common cold है, fever है, headache है, कभी कभार headache, vomiting है. These are the diseases which remains for short period of time, and suddenly it happen to take place in to that person on which it is affected. Now second is the chronic diseases. Chronic diseases क्या होते हैं ये मैंने बोर्ड पे भी लिखा है. Some diseases which last for long time, ज्यादा देर तक ये बीमारी रहती है, खुदा न खास्ता, फॉर 1 year, 2 year, 3 year, या फॉर सम मंथ्स, कुछ मंथ्स तक रहती है डिजीजेस. क्रोनिक डिजीजेस, आई मीन क्रोनिक डिजीजेस कुछ मंथ्स तक रहते हैं, फॉर टू सम ईयर्स या लाइफ टाइम भी एसोसिएट रहती है उस पर्सन के विच हैव क्रोनिक डिजीजेस. दीज कॉज पुअर health,
and in the chronic disease affect a person for a long duration of time, and the patient lost its body weight, it undergoes the appetite, yeah, it becomes very discomfort, its life becomes very miserable, and and we can say generally prolonged poor health रह जाता है इसका when a person undergoes the chronic disease. Those chronic diseases I will mention here some example in this chronic disease, or the malaria है, तो ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड है, कॉलरा है, जिनको हम क्रोनिक डिजीजेस कहलाएंगे, एड्स है, एड्स भी इसमें हम मेंशन कर लेंगे, एड्स, सेफाइलस जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, एड्स, सेफाइलस, गोनोरिया इन द फीमेल्स, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है विच कैन परसिस्ट इन दोज पर्सन for a long time period, and effect is very long, and effect shows various types of symptoms. They have stages when patient undergoes one stage, then into the second stage, then into the third, fourth, whatever the or the example of the chronic disease. And I can also mention here the cancer, tumor, also mention, can be mentioned in this chronic diseases है, we can say the hepatitis है, तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं इसमें, जो डायरिया, डिसेंट्री है, वो भी chronic diseases हम इसमें मेंशन कर सकते हैं. There are the various examples of chronic diseases, life persisting disease, मतलब बहुत देर तक पेशेंट के साथ ये डिजीज वो इसमें मुब्तला होता है, बहुत दिक्कत वाली बात होती है when any person suffer by any kind of chronic disease. It is a lifetime disease, life associating disease. तो बहुत झेलना पड़ता है एक पेशेंट को whenever he becomes prey of this disease, जब वो इस डिजीज का शिकार बन जाता है. तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए chronic diseases के भी. Now is the third one is the congenital disease. Congenital disease बोर्ड पे भी मैंने लिखी है थोड़ा 2-3 लाइन उसमें. These are diseases which are present since birth. They are caused due to genetic abnormalities. ये हमें since birth से, जब भी बच्चा पैदा होता है, पैदा के साथ साथ ही उसमें ये डिजीज होते हैं, वो मदर्स वॉर्म से ही इसको मिलता है. अनफॉर्चुनेटली बाय बर्थ इसको इसके साथ एसोसिएट होती है ये कॉजेनिटल डिजीज. हाँ, ये वो डिजीज होती है जो बच्चे के जन्म के साथ साथ ही साथ होती है ये डिजीज. अनफॉर्चुनेटली उसमें क्या होती है, ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज की वजह से वो डिजीज इसको लगती है. पैदा होने के साथ साथ ही वो न्यू बॉर्न बेबीज, दिस डिजीज इज एसोसिएटेड विद दैट baby, with that we take us their birth by its mother. Then ये कौन है, ड्यू टू द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, वो सारे नॉर्मली तौर होते हैं, मगर इनमें देखा गया है कॉन्जेनिटल में कि बाय बर्थ ही कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं. वी कैन से द सिकल सेल एनीमिया, वहाँ पे जो आरबीसी सेल्स होते हैं वो सिकल फॉर्म में बनते हैं. आरएच फैक्टर्स आते हैं, मतलब ब्लड में होते हैं फैक्टर्स, आरएच फैक्टर्स, उनमें कुछ बनने के दौरान क्या होता है, वो आरएच फैक्टर्स उनमें बदलाव आती है, वो नॉर्मली नहीं बनते, नॉर्मली ब्लड में नहीं बनता है, उनमें सिंथेसिस नहीं होती है, या हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस जो होते हैं, वो कलर ब्लाइंडनेस उनमें क्या होता है, वो जो पिगमेंट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ कलर उस बेबी में नहीं होते हैं. वो पिगमेंट डिटेक्शन हार्मोन्स होते हैं, या हम कहेंगे पिगमेंटिक सेल्स नहीं होते, तो ताकि वो कलर डिफ्रेंसिएशन कर सके. तो दे आर ऑल एसोसिएटेड विद द न्यू बॉर्न बेबी.
हम कहेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यही होते हैं। तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज के साथ होते हैं, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के साथ होते हैं, एबनॉर्मेलिटी के साथ होते हैं congenital diseases or those diseases which are associated with a newborn baby since he or she takes birth by its mother, by its nursing mother, then we can say that the disease associated at that time with that child is a congenital diseases, and mostly जो congenital disease है it is incurable, हम इसको ठीक नहीं कर पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स इट रिमेन्स परमानेंट, बच्चे के साथ परमानेंटली ये एसोसिएट होते हैं, मतलब लाइफ लॉन्ग होते हैं, मतलब थ्रू आउट लाइफ पीरियड के साथ फिर ये एबनॉर्मलिटीज उसके साथ होते हैं एसोसिएट विद दैट बेबी, चाहे वो एडल्ट स्टेज में ओल्ड स्टेज में एसोसिएट रहता है। कुछ हमने जेनेटिक डिजीजेस क्योरेबल होते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स आई मेंशन टू इंक्लूड in this or the congenital disease or the we can say sometime जो हम कहेंगे जो सेक्स क्रोमोसोम का नंबर एबनॉर्मल रहता है, दैट रिजल्ट द डाउन सिंड्रोम होता है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर्स सिंड्रोम है, ये बहुत सारे सिंड्रोम्स है जिनमें इन दैट बेबी देयर इज एबनॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम नंबर होते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे ये सेक्स रिलेटेड डिजीज जो हम कहेंगे जेनेटिक रिलेटेड डिजीजेस, एबनॉर्मल प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम से ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स का नंबर होता है, रिजल्ट इन द डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, हम कहेंगे यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम, और भी बाकी सिंड्रोम्स है विच आर एसोसिएटेड विद द जेनेटिक्स एंड लीड्स टू जेनेटिक डिसऑर्डर। बच्चे के साथ यहाँ पे ये जेनेटिकल डिजीजेस है। और भी कुछ जेनेटिक डिजीज है आई वुड लाइक टू मेंशन हियर और द सुपर मेल्स, सुपर फीमेल्स, ये भी किन से होता है, व्हेन देयर इज abnormal number of the sex chromosomes, there leads to the formation of the super males, super females, they are the genetic aberrations, it is a consequences of genetic aberrations। और भी है, हेमोफेलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, दे आर ऑल द जेनेटिक रिलेटेड एंड इज द जेनेटिक डिसऑर्डर एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द congenital diseases। Now that the fourth one I would like to mention in this topic, types of diseases, they are the acquired diseases। acquired diseases होते हैं वो diseases जो हमें मिलता है बाहर से, या हमें एक्वायर्ड, जो हमें एक्वायर होते हैं, हमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। कल हमने पढ़े क्या फर्स्ट लेक्चर में इसमें क्या कोई सम सोर्सेस ऑफ डिजीज आर इंट्रिंसिक फैक्टर्स, सम आर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, और उन्हीं इंट्रिंसिक फैक्टर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल इन कॉजिंग द एक्वायर्ड डिजीजेस। द एक्वायर्ड डिजीजेस मीन्स विच वी एक्वायर, जो हमें बाहर से हासिल होता है या हमें हमारे बॉडी में खुदा न खासा बाय एक्सीडेंटल अप्रोच, बाय एक्सीडेंटल इवेंट से हमें कुछ डिसऑर्डर आए इंटीरियर ऑर्गन्स में, एक्सटीरियर ऑर्गन्स में, या कुछ हमें बाहर extrinsic factors, that means which we obtain, which we acquire from the outside surroundings, और body जो होता है, body में disorder आता है, disturbance आती है, तो acquired disease is those are the acquired diseases। मैंने कोई definition लिखी है यहाँ पे, इसके भी further सब types है, communicable, non communicable, या हम कहते हैं infectious disease, non infectious diseases, they comes under the acquired diseases। जरा पढ़ लेते बोर्ड पे, these diseases are those, ये वो डिजीज होते हैं which develop after birth। मैंने बताया इससे पहले जो congenital disease है वो since birth से है, पैदा होने के साथ साथ ही वो congenital disease होती है। तो मगर ये डिजीज जो हमें मिलती है, acquired disease जो हमें मिलती है after taking the birth of the baby, after taking the birth we remain directly associated with our surroundings, we remain then interactive with our surroundings। so when we remain direct interactive with our with habitat, with our and with our surrounding places, then we acquire these types of diseases after birth। such diseases are
or in consequences. Acquired diseases can be broadly classified into two. हम इसको broadly classify कर सकते हैं into two में. One is the communicable या हम कहेंगे infectious diseases, and another is non-communicable non-infectious diseases. Dear students, what do you mean by communicable diseases या infectious, या what do you mean by non-communicable, या हम कह सकते हैं non-infectious disease? Important question है यहाँ पे. Infectious diseases क्या होते हैं? Yeah, sometimes they are known as the communicable diseases. They comes under the acquired disease. We acquire it by the extrinsic factors are responsible, whereby we acquire जहाँ से हमें ये मिलता हासिल होता है. तो किस फॉर्म में? infectious disease के सूरत में. infectious diseases में क्या होता है? इसमें क्या होता है? various factors are responsible. मैंने कल भी डिस्कस किया है ये कि जो extrinsic factors होते हैं, जैसे कि microbes are responsible in causing various diseases. देखो हमारे जो एयर, हवा, पानी, soil, on the surface of the things, articles on the surface, on the food में क्या होते हैं? microbes present होते हैं. ये microbes जो होते हैं they enter into our bodies पानी पीने के दौरान, हवा, गंदा हवा लेने के दौरान, या मतलब कंटेमिनेटेड फूड, मतलब जो खराब हुआ होता खाना, वो खाने से ये जर्मस, ये माइक्रोबस अंदर चला जाता है. ये अपने सिम्टम्स दिखाते हैं. इन्फेक्शियस डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द माइक्रोबस, by germs which are present in the components of our surroundings. Those are components which are contaminated already, so we are unaware that these are contaminated, and by during the unawareness, during the absent in mind, these unfortunately these germs enter into our body. There are the various ways. मैंने बताया कि हमारे बॉडी में बहुत सारे एंट्री साइट्स होते हैं जहाँ पे ये माइक्रोब्स कामयाब होता है हमारे बॉडी में, बॉडी के अंदर चले जाते हैं. इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं? मैंने बताया वन फैक्टर इज द बाय मीन्स ऑफ द माइक्रोब्स, the microbes enters into our body and affect our body. नंबर वन जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, खासतौर हम कहते हैं, खासतौर ये हमें मिलता है फ्रॉम द अनहेल्दी पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. जब भी एक मतलब शख्स ऑलरेडी बीमार हुआ होता है, फिर इसकी बीमारी दूसरे healthy person, those healthy person due to absent in mind visit to this unhealthy person, and those unhealthy person affected by infectious diseases, communicable diseases, हम कहते हैं sometimes contagious diseases. It is unaware, that means it goes very close to that person, to that, ये उसके पास जाता है जो unhealthy condition में visit करता है, shows the affection, shows the love, shows the ambition towards that person. तो इसको थोड़ा इसके आर्टिकल्स यूज़ करता है, इसके चीज़ें यूज़ करता है, इसके इसके साथ खाना शेयर करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं. तो इसके कारण क्या हो सकता है? या पास में इसके अपने इस अनहेल्दी पर्सन के पास में रहता है. जब भी अनहेल्दी पर्सन कभी कभार खांसता रहता है, स्नीजिंग, कफिंग होती है, आमतौर पर खांसता रहता है, मतलब उसके दौरान कुछ मुंह, इसके नाक मुंह से कोई ड्रॉपलेट्स निकलते हैं. उस ड्रॉपलेट्स में माइक्रोब्स होते हैं. वही माइक्रोब जिन माइक्रोबों की वजह से बीमार पड़ा है. तो ये माइक्रोब जब भी ये पास में बैठा हुआ होता है हेल्दी पर्सन, ये इनहेल करती इन ड्रॉपलेट्स को. दीज ड्रॉपलेट्स रिमेन सस्पेंड to some duration, it remains suspend into the air. तो ये हवा के साथ जब ये हेल्दी पर्सन इनहेल करता है, जो इसके बगल में बैठा है, इसके पास में बैठा है, इनहेल करता है ये ड्रॉपलेट्स, ये इन दिस वे ये ड्रॉपलेट्स इसके अंदर चला जाता है. दीज ड्रॉपलेट्स आर लेडन बाय द जर्म्स, माइक्रोब्स, और इसके वजह से हेल्दी पर्सन जो है वो शिकार हो जाता है. या कभी कभार ये इसका पानी जो इसने अनहेल्दी पर्सन ने पानी पिया होता है, तो वही पानी शेयर करता है हेल्दी पर्सन से. ये भी कारण होता है. इसके वजह से भी ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो फैल सकती है. बहुत सारे कारण है. बाय शेयरिंग द आर्टिकल्स, बाय शेयरिंग द बुक्स, बाय शेयरिंग वट एवर, जो इसके साथ छू गए हो,
अनहेल्दी पर्सन के साथ वो चीज़ें जो इसने छुए हो, जो इसने टच किए हो, जो इसने पकड़ ली, जो जिसके साथ इसने मुंह लगाया हुआ हो, हाथ लगाए हुए, इसके इनके हाथ, इसके ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, इसके ये तो 100% प्रूव है, इसके हाथ में लगे हुए होते हैं जर्म, इसके कपड़े पे लगे हुए होते हैं जर्म, इसके बॉडी पे, इसके जो सराउंडिंग प्लेस है जहाँ पे अनहेल्दी पेशेंट हमने इसको रखा है, वहाँ पे भी वो जगह क्या है, दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द जर्म्स, बाय द माइक्रोब। जब भी हेल्दी पर्सन इसके पास आता है जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, अब ड्यू टू द एब्सेंट इन माइंड, ड्यू टू द अनअवेयरनेस, इट मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स दैट पर्सन एंड शेयर्स एंड टॉक्स विद हिम, एंड इन द वे that means here the human to human such infectious disease can be transmitted. Now this is the second factor. थर्ड फैक्टर इज द कैसे हमें ये इन्फेक्शियस डिजीज लग सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज का और भी तीसरा कारण है, डैट मीन्स वेक्टर्स, कैरियर्स आर रेस्पॉन्सिबल। मैंने कल भी लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया कि जो वेक्टर्स वो बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स या खुद ये ह्यूमन, आजकल कोविड जो 19 वायरस है इसमें ह्यूमन ही कैरियर है, देखा गया ह्यूमन टू ह्यूमन it transmitters, that means human is also a vector itself, vector carrier of many infectious diseases। अगर हम बात कर लेंगे मलेरिया की, मलेरिया जैसे डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, it is carried as female anaphylaxis mosquito, it is carried by unhealthy person to the healthy person। आप कहोगे सर जी कैसे? जब भी ये मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट करती है एक अनहेल्दी पर्सन को, उसका ब्लड सक कर लेता है, इस गर्ज से ये खाना जूस, मतलब इट इज़ अ पैरासाइट, ये ऐसे इसको मतलब इसका जो ब्लड है वो सक कर लेता है अपने माउथ पार्ट से, और इसके ब्लड में ऑलरेडी अनहेल्दी पर्सन में इसका ब्लड अफेक्ट हुआ है, मतलब अफेक्ट हुआ है, कंटेमिनेट हुआ है ब्लड बाय द प्लाज्मोडियम स्पीशीज से। यही प्लाज्मोडियम जो है फीमेल एनाफिलस के बॉडी में पहुंच जाता है, यही जो एज ए कैरियर ये चला जाता है हेल्दी पर्सन, और वहाँ पे उसको बाइट करता है। जब भी ये बाइट करता है इसके मुंह से, जब भी हेल्दी पर्सन को बाइट करने के लिए जाता है, तो जब भी ये इसे बाइट करता है उसको, ऑलरेडी फीमेल एनाफिलस इज अ कैरियर ऑफ द Plasmodium vivax, like protozoan and is a protozoal disease। जब ये बाइट करता है हेल्दी पर्सन को, जैसे कि जब भी इसने बाइट किया, इसके जो माउथ पार्ट से सलीवा निकलता है, सलीवा में ही होता है प्लाज्मोडियम, जो इसके हेल्दी पर्सन के बॉडी में चला जाता है, वो प्लाज्मोडियम फिर अपना ये नया होस्ट इसको मिलता है, ये नया लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है, और नया साइकिल स्टार्ट करने के बाद आखिरकार इट अफेक्ट द ऑर्गन लिवर, एंड लिवर शोज आफ्टर दैट इट इज अ chronic type of disease। Chronic type of disease, malaria is a chronic type of disease which the patient undergoes various symptoms, and malaria undergoes various stages, and they shows the separate symptoms are seen in the patient। That means it is a infectious disease। वो इस कारण से जो इन्फेक्शियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, वो मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन ये फैलती है, इट सेपरेट्स टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन पर्सन इज ऑलरेडी अफेक्टेड, इट अफेक्ट्स बाय चांस टू द अनदर हेल्दी, हम कहेंगे टू अ न्यू पर्सन, he also gets infection। Now another is the AIDS like sexual transmitted disease है, ये भी फैल जाती है when we have an unknown partner and we have a sex with that, in this way जो AIDS है वो separate होता है, it is also a contagious disease, it separates from affected person to the healthy person to a new person। That means AIDS इस कारण से नहीं to have a sex with unknown partner,
also it can be transmitted by contaminated needles, contaminated razors, blades, contaminated, that means blood ट्रांसफ्यूजन से भी ये इन्फेक्शियस डिजीज फैलती है। इसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 3 ही होगा, हाउ इन्फेक्शियस डिजीजेस सेपरेट फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन। लेट अस वी डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। तो उसमें हम बिल्कुल वजाहत कर लेंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस के। नाउ इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर आल्सो नोन एज द नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये डिजीजेस क्या होते हैं? ये फैलते ही नहीं है। इट नॉट सेपरेट्स फ्रॉम unhealthy person to the healthy person. It not separated from the human population to animal population, yeah, animal population to the human population. It not separated from the contaminated articles, contaminated things, yeah, polluted environment to the healthy person. It not transmitted. It has no mode of transmission. non infectious diseases होते हैं जब भी कभी कभार एक्सीडेंट होता है, इंजरीज होता है, हमारा ऑर्गन खुदा ना खास्ता डैमेज होता है, लॉस्ट होता है कोई ऑर्गन, कोई बॉडी पार्ट, वो डिजीज होते हैं नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, समटाइम्स आल्सो नोन एज द नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस। ये उसी पर्सन को लगता है which is affected, only it persists to that person which is affected। हाँ, ये पर्सनल डिजीज होती है, ये उसी को लगती है जिसको ये होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इट नॉट सेपरेट्स to the population, to the individual to individual in a particular population। ये नहीं फैलती है ये डिजीज। ये मैंने कहा कि कभी कभार यही है एक्सीडेंट, इंजरीज, मैकेनिकल इंजरीज में कोई इंटीरियर ऑर्गन लॉस्ट हो जाता है, डैमेज होता है, टिश्यू इंजरीज होती है, बोन फ्रैक्चर होता है, या हमें न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी रहती है, डिजेनरेशन इन टिश्यू रहता है, हमारा डिजेनरेट इन ऑर्गन रहता है, मॉल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन रहता है। ये उसी पर्सन को होता है जिस पर्सन को ये लगी हुई होती है। इट ओनली इज रेस्ट्रिक्टेड टू दोज पर्सन्स which are involved in such type of diseases. This is known as a non-infectious disease, non-communicable disease। non-communicable disease मैंने अभी कहा कि जो यहाँ पे ये अगर डिसइंटीग्रेटेड टिश्यूज, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, न्यूट्रेंट्स में डिफिशिएंसी रहे, उसमें ये मतलब वीकनेस आता है ड्यू टू दैट डिफिशिएंसी इन विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। देयर इज अ consequences of there are symptoms of rickets, curvinoid blindness, there is the osteoporosis, there is the various deficiency, nutrient vitamin deficiency diseases, mineral deficiency diseases, we can say protein deficiency diseases जो होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में यही क्या होता है, मॉल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। कभी कभार हमारा ऑर्गन जो होता है उसमें अब वो काम नहीं करता है, कुछ वजह हो सकता है, या है हमने कल भी मैंने कहा कि है हमारे आदत में, हमारे हैबिट में बदलाव आती है। समटाइम्स अ पर्सन becomes the habitual of smoking, sometimes it becomes the habitual of the taking the alcohol। तो उसके वो हैबिचुअल में चेंज आना, अपना आदत बदलाना, तो कुछ ना कुछ ऑर्गन इम्पैक्ट होता है, उसमें डिसऑर्डर आती है, तो वो बहुत सारे उसमें आएंगे। जो और डिसऑर्डर आता है उस ऑर्गन में, अब वो ऑर्गन काम करना छोड़ देता, अब इसकी बॉडी जो होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आएगा, ये कल भी मैंने ये एग्जांपल दिया है कि डायबिटीज़ जो होती है ड्यू टू द लो सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन लाइक हार्मोन जो रेगुलेट करता है, या हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, या ओवर सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स रहती है, जैसे कि ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन होते हैं, दे आर द ग्रोथ हार्मोन्स, दे गिव द सिम्टम्स ऑफ गिगैनिटिज्म, ड्राफिज्म लाइक मतलब डिजीजेस होते हैं। दोज आर द नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन such type of diseases। Dear students, I sure that today topic types of diseases you better understand, and there are 4 major types of diseases: acute diseases, chronic diseases, congenital diseases, acquired diseases,
Still, acquired diseases is of two types: communicable infectious diseases, communicable या non infectious diseases, हम कह सकते हैं non communicable diseases. I hope you understand today lecture number 2, chapter 4, ninth biology, why do we fall ill. Dear students, I hope you better understand today's topic. Thank you very much.